Okay, good evening all. Let's start with today's topic. Uh, Today I'm going to start with atoms, molecules, and nuclei. Okay. So let us first discuss about atoms. So what do you mean by atom? What is an atom? Answer me quickly. Atom का मतलब क्या? How you can define atom? Today we are going to discuss about structure of atom, atoms and nuclei. क्या एटम के डेफिनेशन किसी को भी नहीं आते? Mamta, Mitesh, how will you define atom? What is an atom? Ma'am, at positive and negative charge. Mitesh, just repeat yourself again. Ma'am, atom is a particle that contains both positive and negative charge. Okay. So basically, an atom is the smallest particle of an element which take parts in chemical reaction. किसी भी chemical reaction में जो smallest particle रहता है element का, और it is the smallest particle into which an element can be divided. कोई भी element को जिस smallest particle में हम divide कर सकते हैं, that is an atom. That smallest particle of an element is called an atom. So this atom cannot exist in nature freely. So as Mitesh just now said, you have already studied the structure of atom. Atom is electrically neutral. It consists of three fundamental particles, namely electrons, protons, and neutrons. As you have already know, electrons are negatively charged particles, protons are positively charged particles, and neutrons are neutral particles. So in today's topic, we are going to discuss about the structure of atom. So what do you mean by structure of atom? It's structure of atom is nothing but the arrangement of these particles inside the atom. So there is some particular arrangement of these particles, electrons, protons, and neutrons. So this arrangement of these particles inside the atoms gives us the structure of atom. Now, different scientists had put forward different atomic models. Atomic model is nothing but a satisfactory theoretical explanation for the structure of atom. अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग एटॉमिक मॉडल मतलब स्ट्रक्चर बताया एटम्स के. So today we will see some atomic models put forward by different scientists. So the first atomic model in 1808, John Dalton proposed his atomic theory. So according to first we are discussing Dalton's atomic theory. Okay. Dalton's atomic theory. So according to this Dalton, all matter is composed of small, hard, and indivisible particles called atoms. Atoms of given elements are identical. अगर कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट है तो उसके एटम्स क्या रहेंगे? आइडेंटिकल रहेंगे एज पर दिस at Dalton's atomic theory and have characteristics mass. Okay. Atoms combine to form a molecule which is the smallest unit of compound. All the statements were given in Dalton's atomic theory. Okay. So as per the Dalton's atomic theory, how Dalton's had put forward the structure of atom. As per this Dalton's atomic theory, atom कैसे this all matter is composed of the small, hard, and indivisible particles. So atoms are generally small, hard, and indivisible particles.
And if you take any element, then the atoms of given element are identical and they have some characteristics mass. Okay. Whenever these atoms combine, they form a compound. Okay. They form a molecule. Okay. And molecule is the smallest unit of compound. So all these were discussed by Dalton, given in Dalton's atomic theory, in his atomic theory. Okay. Then Thomson's model. J.J. Thomson discovered electron in 1897. So let us see what this Thomson uh, tells in his model, atomic model. So sharing image. So Thomson ने क्या बोला? As per this, according to this Thomson, an atom is a sphere of uniformly distributed positive charges with electrons embedded in that sphere. थॉमसन के अकॉर्डिंग ये मॉडल कैसे था, एटम्स कैसे है, तो एक स्पीयर है, स्पीयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, and as you can see here, negatively charged electrons are embedded in it. So you can imagine this Thomson's atomic model just like raisins in fruit cake or watermelon in which seeds are embedded in it. So this is the Thomson's atomic model. Okay. Since this structure of atom given by Thomson is just like raisins in fruit cake, this model is also known as plum pudding model. Okay. इस मॉडल को क्या कहते हैं, एटॉमिक मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल. Now in Thomson's atomic model, Thomson considered that the sphere contains equal distribution of positive and negative charges. ये जो positive और negative charges है atoms में, उनका distribution है कैसे, equal है. This, Thomson had also given the radius of the sphere, that is radius of the atom. Okay. And the radius of the atom as per this model is 10 raised to minus 10 meter. In Thomson's atomic model, he also mentioned about the oscillations of electron. Okay. In this Thomson's model, he told that the electrons in the atom oscillates about their equilibrium position. Okay. Suppose ये equilibrium position है, then these electrons will oscillate about their equilibrium position. Electrons क्या करेंगे, oscillate करेंगे. And what happens because of this? This results in the emission of radiation of definite frequency. Since electrons are एक mean position along the electrons क्या कर रहे, oscillate कर रहे, and because of this what will happen? Electron will radiate because of this, since electrons are oscillating about their mean position, that will emit some radiation of definite frequency. Definite frequency means that frequency will be in the range of infrared, visible or ultraviolet radiations. So there are few phenomena which we can explain with the help of this Thomson's atomic model. And few phenomena are also like that which we could not explain by considering the Thomson's atomic model. So if you consider the phenomena of photoelectric effect, photoelectric effect का phenomena आपने study किया होगा. Okay. What is photoelectric effect? Can anybody tell me? Photoelectric effect पढ़ा है? तो ये इससे के नाम से what is photoelectric effect? See, there are certain substance or metals. Okay. Whenever these metals are exposed to radiation of suitable frequency, अगर वो मेटल पे सुटेबल फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस अगर इंसिडेंट होते हैं, देन दैट मेटल्स एमिट इलेक्ट्रॉन्स. तो वो मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एमिट करते हैं. So this phenomenon of emission of electrons by certain substance, whenever they are exposed to radiation of suitable frequency, उनको क्या कहते हैं, इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. मतलब रेडिएशन इंसिडेंट होने की वजह से वो मेटल्स, वो मटेरियल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एमिट करते हैं, इसीलिए उसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. से कुछ इफेक्ट है, जैसे फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट है, आयोनाइजेशन है, थर्मी आयोनिक एमिशन है. This effects, this phenomenon
can be easily explained or by this Thomson's atomic model. Whereas there are few phenomena like scattering of alpha particles, origin of the spectral lines of a hydrogen atom. These are the phenomena which could not explain by considering the Thomson's atomic model. So हर एक atomic model के कुछ drawback होते, कुछ merits रहते, कुछ demerits रहते. With the help of that atomic model, we can explain few phenomena where we could not explain few. Okay? कुछ phenomena we can explain some phenomena, कुछ नहीं भी कर सकते. सो इसको मेरिट्स और डीमेरिट्स कहते हैं या फिर ड्रॉबैक्स है कुछ और कुछ सक्सेस है हर एक मॉडल के एटॉमिक मॉडल्स के. So this is all about Thomson's model of atom. Now, after this, we will see alpha particle scattering experiment, and then we will move towards the next atomic model given by Rutherford's, that is Rutherford's model of atom. Okay. So first, let us discuss this alpha particle scattering experiment. What do you mean by alpha particle? अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या है? See, alpha particle is helium nucleus. So basically, it is helium atom with both electrons removed. Okay? Helium में क्या रहते हैं? 4 atomic mass number है और atomic number है 2. So when both electrons are removed, so there are 2 protons and 2 electrons are there. Okay. 2 protons and 2 neutrons are present in the nucleus, and 2 electrons revolve around the nucleus in circular orbit in case of an helium atom. So when we remove both the electrons, okay, and there is only a helium nucleus left over, that helium nucleus is called alpha particle. Okay. So since here both the electrons are removed from the helium atom, it has only positive charge. So because of this, the alpha particles are positively charged particles. अल्फा पार्टिकल मतलब कि हीलियम एटम में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते? 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते, 2 प्रोटॉन्स रहते और 2 न्यूट्रॉन्स रहते. जब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं उसमें से, सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. व्हेन वी रिमूव दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स from helium atom, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, then only positively charged nucleus is left. So this positively charged nucleus of helium atom is called alpha particle. Since it has only positively charged protons now and neutrons, it has positive charge. So alpha particles are positively charged particles. So now we will see the alpha particle scattering experiment. Okay. So why we are discussing this experiment is, this experiment is basically performed to investigate the structure of atom. एटम का स्ट्रक्चर कैसे है एग्जैक्टली वो पता लगाने के लिए ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था. सो Rutherford and his 2 associates, Giger and Marsden, they performed this scattering experiment of alpha particle by gold foil. So let us see how this experiment was performed at that time. So I'm clearing this and sharing another image. Just give me a second.
Okay, so here is the required image for discussing this Giger Marsden experiment. Okay, as I have said just now, this experiment is basically performed to investigate the structure of atom. एटम का स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या है ये पता लगाने के लिए ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया. So in this experiment, a narrow beam. So let us first see what are the are the materials or things used in this experiment. So they, as you can see here, there is a source of alpha particles, then lead bricks, gold foil, and screen and detectors. These things are there in this experiment. So how this experiment is performed is, in this experiment, a narrow beam of alpha particles from some radioactive source was incident on gold foil. So as you can see here, from the source of alpha particles, a narrow beam were incident on gold foil. यहाँ पे एक गोल्ड फॉइल है. इस गोल्ड फॉइल पे क्या किए, अल्फा पार्टिकल्स की एक अल्फा पार्टिकल की बीम इंसिडेंट की गई. And when this narrow beam of alpha particle were incident on gold foil, these alpha particles got scattered in different directions. ये alpha particle क्या हो गए, scattered हो गए अलग अलग एंगल में. So there was a detector placed in front of this. Okay? So the scattered alpha particles were detected by detector. So detector was fixed on some rotating stand. इस डिटेक्टर के हेल्प से एक पर्टिकुलर एंगल में, अलग अलग एंगल में कितने अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हुए ये डिटेक्ट किए. सो डिटेक्टर में बेसिकली क्या था, सो डिटेक्टर यूज whichever the detector which they had used in their experiment consist of zinc sulfide screen and microscope. जो डिटेक्टर उन्होंने यूज किया था उसमें क्या थे, जिंक सल्फाइड स्क्रीन थी और माइक्रोस्कोप थे. जिंक सल्फाइड स्क्रीन का यूज क्या था, see whenever alpha particles strike on the screen they produce scintillations on screen. Scintillations मतलब एक स्पार्किंग, एक छोटा सा फायर वो प्रोड्यूस करते थे whenever the alpha particles strike on this detector screen, जिंक सल्फाइड स्क्रीन. और वो स्पार्क से पता चलता था कि कितने अल्फा पार्टिकल उस स्क्रीन पे इंसिडेंट हुए हैं. Okay, so how many alpha particles get scattered in this particular direction, उस scintillation से पता चलता था. And this whole setup is enclosed in an evacuated chamber. Okay? So this is how this experiment was performed. Experiment समझाए सबको कैसे किया गया है. सिंपली एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया, okay? अल्फा पार्टिकल के बीम को गोल्ड फॉइल पे इंसिडेंट किया और गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल्स इंसिडेंट होने के बाद दे गॉट स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस. वो अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो गए. तो अलग अलग एंगल से कितने अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हुए, कौन से डायरेक्शन में, कौन से एंगल में, वो ये डिटेक्टर से क्या किया गया, डिटेक्ट किया गया. And they observed in this experiment, they observed the number of alpha particles as a function of scattering angle. Means what? How many alpha particles are scattering at particular different angles had been observed. Okay. So what is scattering angle here? I'm clearing this screen and sharing again image. So the scattering angle is nothing but angle between incident direction and scattered direction. Incident path है scattered path of the alpha particle. किस डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट किए हैं, स्ट्रेट लाइन में. ओके, सपोज सो दिस इज द इंसिडेंट पाथ, द पाथ इन विच दे इंसिडेंट ऑन द गोल्ड फॉइल. स्कैटर्ड डायरेक्शन में सपोज ये इस डायरेक्शन में वो स्कैटर्ड हो रहे हैं अल्फा पार्टिकल. सो द एंगल बिटवीन दिस टू, angle between incident and scattered path is angle of scattering angle. Okay. So this is all about this alpha particle scattering experiment. Now let us see what are the observations of alpha scattering experiment. So what they observed in this experiment is most of the alpha particles passed undeviated. जितने भी अल्फा पार्टिकल मतलब उन्होंने इंसिडेंट की इस गोल्ड फॉइल पे, मोस्ट ऑफ दिस अल्फा पार्टिकल्स पास्ट अनडेविएटेड. अनडेविएटेड मतलब
डेविएट नहीं हुए, उनके डायरेक्शन पाथ चेंज नहीं हुआ, द डायरेक्शन इन विच दे इंसिडेंट, उसी डायरेक्शन में वो आगे बढ़े. Only few means how many? About 0.14% scattered by more than 1 degree angle. 1 डिग्री एंगल से ज्यादा एंगल से कितने अल्फा पार्टिकल डिटेक्ट स्कैटर्ड हुए? तो 0.14%. A few alpha particles deflected through the angles more than 90 degree. More than 90 degree मतलब किस डिरेक्शन में जाएंगे? ये सपोज ब्लू लाइन जो है वो इनका इंसिडेंट पाथ थी, गोल्ड फॉइल पे इंसिडेंट हो गए, तो 90 डिग्री मतलब आइदर इस डिरेक्शन में या फिर इस डिरेक्शन में स्कैटर्ड हुए. कितने पार्टिकल्स? अल्फा पार्टिकल्स वेरी फ्यू मीन्स 1 in 1000. अगर मैं 1000 अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट कर रही हूँ तो 1000 में से एक अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री एंगल से या फिर उससे ज्यादा एंगल से क्या हुआ? डिफ्लेक्ट हुआ, स्कैटर्ड हुआ. okay? ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल तो अनडेविएटेड रे, मीन्स देयर वाज नो चेंज इन द पाथ, their incident path. Okay? And very few alpha particles returned back मतलब क्या? जिस डिरेक्शन में वो इंसिडेंट हुए हैं, सपोज ये गोल्ड फॉइल है, okay? जिस डिरेक्शन में अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट किए गए उसी डिरेक्शन में वो डिफ्लेक्ट हुए. okay? कितने अल्फा पार्टिकल्स के बारे में ये देखा गया? वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स रिटर्न बैक मीन्स दे गेट डिफ्लेक्टेड और बाउंस्ड बैक विथ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री. जिस पाथ में जा रहे हैं उसी पाथ में रिटर्न आना, मतलब एंगल ऑफ स्कैटरिंग कितना है उनका यहाँ पे? when alpha particle is bouncing back in the same direction, that time their scattering angle was 180 degree. okay? ये 180 डिग्री उनका क्या था? स्कैटरिंग एंगल था. So these are the observations of alpha scattering experiment. क्या ऑब्जर्व किया गया कि ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स अनडेविएट रहे, विदाउट एनी अप्रिशिएबल डिफ्लेक्शन दे पास्ड in the direction in which they are incident. They were incident. Some of them deflected through small angles. कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए. very few alpha particles deflected through angles more than 90 degree. 90 डिग्री से ज्यादा एंगल से कुछ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हुए. कुछ मतलब क्या? अगर 1000 अल्फा पार्टिकल हम लोग इंसिडेंट करें तो उसमें से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री से क्या हो रहा था? डिफ्लेक्ट हो रहा था. एंड वेरी फ्यू वे आर बाउंसिंग बैक विथ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री. So these were the observations noted by this Giger Marsden while performing this alpha scattering experiment. तो इससे कंक्लूजन क्या निकाला गया? सो ऑब्जर्वेशन हो गया, तो ऑब्जर्वेशन के बाद कहते हैं कंक्लूजन. सो जो भी ऑब्जर्वेशन था उनका, उससे उन्होंने क्या कंक्लूड किया? लेट अस सी दैट. तो कुछ ऐसा अल्फा पार्टिकल का ये था. तो क्यों स्कैटर्ड हो रहे हैं? पहली बात तो व्हाई दिस अल्फा पार्टिकल्स आर स्कैटरिंग आफ्टर इंसिडेंटिंग ऑन गोल्ड न्यूक्लियस? क्यों स्कैटर्ड हो रहे होंगे? कैन एनीबॉडी टेल मी हियर why these particles are scattering in different directions or with different angles after incidenting on gold foil? अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर कौन सा चार्ज है? which charge alpha particle is carrying? पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट. एंड गोल्ड फॉइल, तो गोल्ड एटम में भी पॉजिटिव चार्ज होगा. कहाँ पे था वो पता नहीं, बट दो पार्टिकल्स थे उतना तो ये एक्सपेरिमेंट किया तभी पता था कि
पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो ये जो पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल है, दे गेटिंग रिपेल्ड बाय द पॉजिटिव चार्ज इन गोल्ड एटम। गोल्ड एटम का जो पॉजिटिव चार्ज था उससे ये पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे थे, रिपेल हो रहे थे एज पर कूलम्स लॉ। कूलम्स इंटरेक्शन between positive particles. If there are two positive particles, like particles are there, then there is a force of repulsion between those two particles. Okay? So here also the same thing happens. So Rutherford assumed that this scattering occurs mainly due to the Coulomb interaction between positively charged alpha particle and positive charge in gold atom. गोल्ड एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है उसके बीच में और पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल के बीच में, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव थिंग्स में जो रिपल्शन है, दे आर रिपल्सिंग ईच अदर। तो ये जो रिपल्सिव फोर्स है दोनों के बीच में, उसकी वजह से ये स्कैटर्ड हो रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स। Then what they have observed is this: most of the particles, alpha particle, passed undeviated. ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल तो अनडेविएट रहे, मतलब उनको जिस एंगल में इंसिडेंट किया गया, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट किया गया, उसी डायरेक्शन में वो आगे बढ़े। सो व्हाट दिस इंडिकेट्स दैट द एटम हैज लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इन इट। एटम में बहुत सारे एम्प्टी स्पेस है। जैसे कि सपोज यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है एटम में, तो कोई भी नहीं है अल्फा पार्टिकल के पाथ में, इसीलिए जिस डायरेक्शन में वो इंसिडेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में वो आगे बढ़ रहे हैं, बिकॉज देर इज नथिंग इन हिज पाथ, इन द पाथ ऑफ दैट पर्टिकुलर अल्फा पार्टिकल, जिसकी वजह से वो रिपेल होगा। तो ऐसे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स अनडेविएटेड रहे, जिस डायरेक्शन में उनको इंसिडेंट किया गया उस डायरेक्शन में वो आगे बढ़े। सो इससे उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि एटम में बहुत सारे एम्प्टी स्पेस है, and since these alpha particles are passing through that empty space, they are not getting deflected at all, okay? or they are passing without deviation, without deviate हुए वो pass हो रहे। okay? Then the next thing which they have concluded from this experiment is the alpha particles which are passing at larger distance from positive charge in the atom, they suffer small deviation. Let me clear my point with the help of this diagram. So I need to share it again. तीसरा पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं अभी कंक्लूजन का। सी यहाँ पे देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है एटम का, ये अल्फा पार्टिकल्स के डायरेक्शंस दिखाए हैं इंसिडेंट के अल्फा पार्टिकल से। सो ये पॉजिटिव चार्ज से जिस अल्फा पार्टिकल का डिस्टेंस देखो, ये इसको अभी मैं नंबर देती हूँ, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सो विच इज द क्लोजेस्ट अल्फा पार्टिकल फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज एटम, पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम, गोल्ड एटम। गोल्ड एटम के पॉजिटिव चार्ज से कौन सा अल्फा पार्टिकल नजदीक है? 1। सो ये 1 जो अल्फा पार्टिकल, फर्स्ट अल्फा पार्टिकल है, उसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन देखो, वो कैसे डिफ्लेक्ट हो रहा है, इतने एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है। उससे थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस पे जो पार्टिकल है, जैसे सेकेंड अल्फा पार्टिकल, वो कितने डिफ्लेक्ट हो रहे हैं देखो, और उससे भी ज्यादा, मतलब जो सबसे दूर है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है एटम का, उससे जो बहुत लंबा है, दूर है अल्फा पार्टिकल, जैसे ये थर्ड पार्टिकल, उसका डिफ्लेक्शन कैसे देखो, इट इज ऑलमोस्ट अनडेविएटेड, ऑलमोस्ट वो अनडेविएट है। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस, पॉजिटिव चार्ज से जो अल्फा पार्टिकल क्लोज है उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा है, जैसे ही अल्फा पार्टिकल का डिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज से बढ़ता है उसका डिफ्लेक्शन कम हो जाता है। सो व्हाई दिस इज सो, ऐसा क्यों है? ये साइड पे भी ऑब्जर्व कर सकते हो, जो नजदीक है पॉजिटिव चार्ज के वो अल्फा पार्टिकल ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है, पूरा बेंड हो रहा है यहाँ से। जो थोड़ा उससे दूर है वो
यहाँ तक अनडेविएट है, फिर जाके डिफ्लेक्ट हुए थोड़ा सा, और जो उससे भी दूर है अल्फा पार्टिकल, ये वो तो ऑलमोस्ट अनडेविएट है, एंड देन इट इज डेविएटिंग लिटिल बिट, डिफ्लेक्टिंग लिटिल बिट, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ है। सो ऐसा क्यों होगा? पॉजिटिव मैम वो चार्ज, हीलियम 2 प्लस का जो पार्टिकल है वो प्लस प्लस वो रिपेल होगा ना, इसलिए प्लस वाला ज्यादा मतलब यस। सो हो रहा है। this was one of the conclusion uh, from this scattering experiment, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, कि ये जो डेविएशन से वो किसके ऊपर डिपेंड है? द डिस्टेंस ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम। The alpha particles passing at larger distance from this positive charge in the atom, they will suffer small deviation due to smaller force of repulsion. क्योंकि इस पार्टिकल को जितना रिपल्शन होगा पॉजिटिव चार्ज का, उतना इसको नहीं होगा, क्योंकि ये पार्टिकल के दूर है उससे, पॉजिटिव चार्ज से। Then one more thing concluded from this alpha scattering experiment was the alpha particle passing through the atom nearer to the positive charge on the atom in the atom experiences large electrostatic force of repulsion. वो तो अभी जो पॉइंट डिस्कस किया, द सेम पॉइंट, कि जो एकदम सेंटर से पास हो रहा है, ठीक, या फिर पॉजिटिव चार्ज के नजदीक से पास हो रहा है, जैसे हम लोगों ने ये फर्स्ट वाला देखा, तो वो क्या करेगा? ऑब्वियसली, since it will experience a more force of repulsion, it will suffer large deviation. वो large मतलब बहुत बड़े एंगल से डेविएट होगा। Then the next thing is the alpha particle which travel directly towards the center, जो डायरेक्टली सेंटर में जा रहे हैं, वो अल्फा पार्टिकल कितने एंगल से डिफ्लेक्ट होंगे? आर यू गेटिंग माई क्वेश्चन? सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है एटम का, अगर कोई पार्टिकल एकदम सेंटर में इंसिडेंट हो रहा है, सोर्स से ऐसे वो पार्टिकल निकला, सेम डायरेक्शन में बैक करेगा। 180 ना, इट विल वो क्या होगा? इट विल बाउंस्ड बैक विथ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। सो ये मैक्सिमम रिपल्शन, मैक्सिमम डेविएशन है 180 वाला, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एटम ड्यू टू द मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्स बाय पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर ऑफ द एटम। तो ये क्या था? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के एक्सपेरिमेंट था। तो इससे क्या पता चलते हैं? द पॉजिटिवली चार्ज्ड पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज लोकेटेड एट द सेंटर। जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर में लोकेट है। सो बाद में हम रुदरफोर्ड्स मॉडल डिस्कस करेंगे, दैट टाइम वी विल सी how Rutherford proposed his atomic model on the basis of these observations made by Giger and Marsden. Okay. Before that, few things which we required while solving some problems based on this is number of scattered particles. Okay. जो न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस के लिए जरूरी है, रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड स्कैटर्ड एंगल। अभी जैसे हम लोगों ने ये देखा, स्कैटर्ड एंगल थीटा से डिनोट किया था। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड थ्रू एन एंगल थीटा? सो this relationship between these two is given by this expression, and it's inversely proportional to the sin raised to 4 theta by 2. Okay, fourth power of sin theta by 2. Okay, now the thickness of the foil, जैसे यहाँ पे गोल्ड फॉइल यूज की थी, तो उस गोल्ड फॉइल की थिकनेस क्या है? दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सपोज फॉइल की, जो भी फॉइल हम है, then number of alpha particles scattered in that particular direction if your theta is constant. What I'm saying, if t is the thickness of the foil, foil की अगर thickness है t, और अगर हम अल्फा पार्टिकल कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो रहे, मतलब थीटा कांस्टेंट है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम लोग ये रिलेशन देख रहे हैं।
suppose particles are scattering in particular direction, so theta is constant here, then in that case n is directly proportional to t. When this is this we can consider when theta is constant. जब हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितने अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहे हैं वो अगर काउंट कर रहे हैं, मतलब थीटा हमारा कांस्टेंट है, then in that case the number of scattered particle is directly proportional to thickness, so n upon t is constant here. And from this, since there is direct proportionality between these two, we can write the relationship between these two as n1 n2 is equal to t1 t2. So remember, number of scattered particle is directly proportional to the thickness of the foil. Foil की thickness पे depend है, directly proportional है foil के thickness से. Then one more important term related with this is distance of closest approach. Distance of closest approach. So अभी हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट में देखा कि एक्सपेरिमेंट क्या था कि किसी सोर्स से, अल्फा पार्टिकल के सोर्स से, रेडियो एक्टिव सोर्स से अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट किए गए गोल्ड फॉइल पे, और जैसे ही गोल्ड फॉइल पे ये अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट होते, दे गेट स्कैटर्ड इन डिफरेंट directions with different scattering angles. So and we have seen that few alpha particles were deflected back, in the same direction because of the force of repulsion between positive charge on of the atom and positive charge of the alpha particles. So since there is this force of repulsion between the positively charged positive charge of the atom and positive charge on the alpha particle, there is some minimum distance from the nucleus up to which the alpha particle can approach. अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से जिस डिस्टेंस पे, कम से कम डिस्टेंस पे तक पहुंच सकते हैं, उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. सपोज ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है एटम का, ये न्यूक्लियस है. पॉजिटिव चार्ज मतलब अभी हम उसको न्यूक्लियस कहते हैं, because we know that the positive charge is located at the center and Rutherford defined this massive positive center in nucleus. Suppose ये एटम का पॉजिटिव चार्ज है, मतलब न्यूक्लियस से पॉजिटिव सेंटर है, where positively charged protons are there. अल्फा पार्टिकल भी क्या है? पॉजिटिव है. सपोज ये मेरा अल्फा पार्टिकल है पॉजिटिवली चार्ज, He कर देती हूँ मैं उसको, अल्फा पार्टिकल है मेरा. सो ये अल्फा पार्टिकल डायरेक्ट न्यूक्लियस तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है? ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है. देयर इज फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन दीज टू. सो एक कम से कम डिस्टेंस है जहां तक वो आ सकता है. लेट अस अज्यूम दैट सिर्फ यहाँ तक ही वो अल्फा पार्टिकल आ सकता है. सो दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस से ये कम से कम डिस्टेंस है जहां तक अल्फा पार्टिकल क्या सकते हैं? पहुंच सकते हैं. सो ये जो कम से कम डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस है फ्रॉम न्यूक्लियस अप टू विच अल्फा पार्टिकल अप्रोच, that distance is called distance of closest approach. And it is basically denoted by r0. r0 से डिनोट करते हैं. सो उसके नाम में ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. अप्रोच मतलब पहुंचना, जिस कम से कम डिस्टेंस तक अल्फा पार्टिकल पहुंच सकते हैं न्यूक्लियस से, उसको क्या कहते हैं? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. दोनों एक दूसरे से एकदम क्लोज नहीं आ सकते बिकॉज देयर इज सम फोर्स ऑफ रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू. दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन है. सो दे कांट कम वेरी क्लोज, दे कांट कम closer to each other, too much closer to each other, too much close to each other. So
the minimum distance up to which this alpha particle can approach, that distance is called distance of closest approach, denoted by r0. और इस distance पे क्या होता है, okay? Suppose let us go back to the experiment, या फिर I can draw here also. ये एटम की न्यूक्लियस है, so this is the positive charge of atom. न्यूक्लियस है ये, पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम. ये सपोज पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट हो रहा है, इस डायरेक्शन में आया इंसिडेंट होके. सो इंसिडेंट होने के बाद यहाँ से यहाँ अल्फा पार्टिकल है इस पॉइंट तक, मतलब उसके पास कौन सी एनर्जी थी, अल्फा पार्टिकल इज मूविंग. सपोज ये सोर्स है, ये सोर्स से अल्फा पार्टिकल निकला, एस इज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल. इस सोर्स से अल्फा पार्टिकल निकल के यहाँ तक आया. सो अल्फा पार्टिकल हैज मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, यहाँ तक यह मूव हुआ. ये इसके आगे नहीं जा रहा है अल्फा पार्टिकल, बिकॉज देयर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन दिस टू. तो ये न्यूक्लियस उसको रिपेल कर रही है, नजदीक नहीं आने दे रही है. सो जैसे हम लोगों ने डिफाइन किया है, ये क्या है मेरा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस from the nucleus where this alpha particle can approach, up to which this alpha particle can approach. Okay. So यहाँ से यहाँ तक जब अल्फा पार्टिकल मूव हुआ है तो उसके पास कौन सी एनर्जी थी. When any object moves, okay, is in motion, what energy it possesses, what kind of energy it possesses. कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में रहता है तो उसके पास कौन सी एनर्जी रहती है. टेक एन एग्जांपल ऑफ बॉल. पहले बॉल एट रेस्ट है, स्टेशनरी है, एंड देन आफ्टर अप्लाइंग सम फोर्स, ये बॉल रोल होके यहाँ तक आ गया. तो पहले उसके पास कौन सी एनर्जी थी, एंड व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग, स्टार्ट्स रोलिंग, उसके पास कौन सी एनर्जी है. ये तो स्कूल में हुआ है, बोलो जल्दी. Whenever any object is at rest, it has potential energy, and whenever it is in motion, which energy the object possesses whenever it is in motion. कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में रहते हैं तो कौन सी एनर्जी रहती है उसके पास. काइनेटिक एनर्जी के बारे में सुना है. Yes, ma'am. So whenever any object is in motion, it has kinetic energy. Whenever it is at rest, it has potential energy. तो यहाँ पता है ना ये दोनों एनर्जी के बारे में, काइनेटिक और पोटेंशियल. सो देखो, जब भी अल्फा पार्टिकल यहाँ पे सोर्स से इंसिडेंट हुए तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी थी. वो क्योंकि वो मोशन में थे, गति में थे, दे आर मूविंग, देयरफॉर दिस अल्फा पार्टिकल्स हैव पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी. फिर यहाँ पे आके रुक के उसके आगे नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ रिपल्शन ड्यू टू दिस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस. ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस उनको रिपेल कर रही है. So they can approach only till this point, up to this point. Okay? तो इस point पे क्या होता है, at this distance what happens is entire initial kinetic energy has been converted into potential energy. इस point पे जो भी particle की kinetic energy है, जिस पार्टिकल से वो वेलोसिटी से वो मूव हो रहे थे, स्पीड से मूव हो रहे थे, वो पूरी उनकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. क्योंकि यहाँ पे वो मोशन में थे, बाद में यहाँ पे आके स्टॉप हो गए. सो एट दिस डिस्टेंस, एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल is getting converted into potential energy. So we can equate this to kinetic energy is equal to potential energy at r0, distance of closest approach. And when we equate this, what we will get, let us see. Okay. What is the expression, general expression for kinetic energy? Kinetic energy का general expression क्या है? K equal to half mv square. Yes, half mv square.
और पोटेंशियल एनर्जी का क्या है? तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से? इट्स बिकॉज ऑफ द रिपल्सिव फोर्स ना between positively charged positive charge on the proton sorry atom and positive charge on the nucleus. So we can equate this with 1 upon 4 pi epsilon 0. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कूलम्स लॉ जैसे ही 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के डिनोमिनेटर में रहते Q1 हैं Q2 by R square. वो कूलम फोर्स में रहते हैं आर स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ आर रहते हैं, डिस्टेंस रहते हैं, स्क्वायर नहीं रहता. सो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? हम बात करें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की, विच वी हैव डिनोटेड बाय आर नॉट. न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल में ये जब डिस्टेंस है क्लोजेस्ट अप्रोच का, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जब जितने क्लोज आ सकते अल्फा पार्टिकल वो वहां तक आए हैं न्यूक्लियस के, उस डिस्टेंस को हमने डिफाइन किया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. और डिनोमिनेटर में रहते हैं पोटेंशियल एनर्जी के द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस. सो अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना है? चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल 2 plus 2 electron. 2 इलेक्ट्रॉन्स. ओके. और कोई भी एटम हो सकता है, तो एटम का चार्ज क्या है? एटम के न्यूक्लियस में कितना चार्ज है? चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ एटम. Z सपोज उस electron. एटम जेडी जेड जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन से, या फिर जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन से प्रेजेंट. और हर एक प्रोटॉन का चार्ज है ई, सो जेड ई. तो ये हम लोग को ये मिल गए है फॉर्मूला यहाँ से डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का. So we can rewrite this in terms of R naught. So R naught will be Z E square upon M V square pi epsilon 0. Okay. ये इसको मैंने अगर 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो मुझे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 मिलेगा. इफ आई मल्टीप्लाई दिस बाय एंड डिवाइड दिस बाय 4 तो ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये टर्म को मैं कांस्टेंट के से डिफाइन कर सकती हूँ. मतलब ये फॉर्मूला जस्ट शॉर्ट में लिखने के लिए, नथिंग एल्स. सो इफ आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस एक्सप्रेशन बाय 4 एंड denote this 1 upon 4 pi epsilon 0 term by k, then I can rewrite this expression by as 4k ze square upon mv square, where k is 1 upon 4 pi epsilon 0, क्योंकि उसकी वैल्यू पता रहती है ना हम लोग को. 1 upon 4 pi epsilon 0 की वैल्यू कांस्टेंट है 9 into 10 raised to 9. Therefore, to simplify this expression, I have multiply and divide this by 4. Okay? So that 1 upon 4 pi epsilon 0 we can denote by k. Okay? So ये नोट डाउन करो एक्सप्रेशन. इसको मैं यहाँ पे रीराइट करती हूँ. देन वी विल सी सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस. इसको एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखती हूँ जेड ई स्क्वायर. ये दोनों एक्सप्रेशन नोट डाउन करो. एम वी स्क्वायर पाई एप्सिलॉन 0. All of you have understood how this expression come here? यस मैम. Okay, write what k represent. 1 by 4 by epsilon naught. Yes. तो नाम से टर्म्स का पता चलता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. मिनिमम डिस्टेंस न्यूक्लियस से जहां तक ये हीलियम एट न्यूक्लियस मतलब अल्फा पार्टिकल पहुंच सकता है,
वो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. Noted this. Shall we move ahead? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So let us move quickly. The last term related with this alpha particle scattering experiment we will see, and then we will go for question and answers. Okay. Impact parameter. Have you heard about this term, impact parameter? So ये impact parameter क्या है? ये डायग्राम से देखो, ये बी से डिनोट करते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर. एंड व्हाट इज दिस इम्पैक्ट पैरामीटर? It is nothing but the perpendicular distance of the velocity vector of the alpha particle from the center of the nucleus. न्यूक्लियस की ये सेंटर है, बराबर. यह ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किए और इस डायरेक्शन में ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है, तो इसके वेलोसिटी वेक्टर और सेंटर, न्यूक्लियस के सेंटर के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या कहते हैं? इम्पैक्ट पैरामीटर. तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अल्फा पार्टिकल ये न्यूक्लियस से जितना दूर रहेगा उसका उतना इम्पैक्ट पैरामीटर क्या रहेगा? इंक्रीज होगा. फॉर लार्ज बी दिस अल्फा पार्टिकल्स विल गो अनडेविएटेड. एक मिनट, मैं फिर से थोड़ी ये इमेज शेयर करती हूँ. See, but when this impact parameter is generally measured, whenever the alpha particle is far away from the nucleus, जब भी न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल बहुत दूर रहता है, that time whatever is the perpendicular distance between the velocity vector and the center of the nucleus is there, that perpendicular distance is defined as impact parameter. मतलब हम देखते हैं उस न्यूक्लियस का इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस कहाँ तक होगा. तो ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल का वी हैव टू मेजर दिस व्हेन अल्फा पार्टिकल इज फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. तो यहाँ पे तो रहेगा तो फार अवे नहीं है, ये न्यूक्लियस के नजदीक है. सो दिस इज द पोजीशन वेयर दिस अल्फा पार्टिकल इज फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, whatever is the distance between the velocity vector and this center of the nucleus, this perpendicular distance of this velocity vector of the alpha particle and the center of the nucleus is known as impact parameter of the particle. Obviously, we are measuring this distance when alpha particle is far away from the nucleus. समझ में आ रहा है? अल्फा पार्टिकल जब न्यूक्लियस से बहुत दूर है, बहुत दूर मतलब एकदम एटम के बाहर भी नहीं, it is passing, you can see it is passing very close to the edge of this atom. Okay? So this distance between the velocity vector and velocity vector, क्योंकि अल्फा पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो ये वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा. न्यूक्लियस का सेंटर यहाँ पे है और दोनों के बीच का ये डिस्टेंस, ये है इम्पैक्ट पैरामीटर. एंड सो एज यू कैन सी हियर, फॉर लार्ज बी द अल्फा पार्टिकल्स विल गो अनडेविएटेड. जैसे कि यहाँ पे अगर अल्फा पार्टिकल
सो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल यहाँ से डेविएट हो सकता है, यहाँ इंसिडेंट हो सकता है। इसके बाहर से अगर अल्फा पार्टिकल गए तो एटम और उस अल्फा पार्टिकल का कोई कनेक्शन है ही नहीं। सो ये मैक्सिमम बी है। सो जब मैक्सिमम बी होता है, बी की वैल्यू लार्ज है, तो अल्फा पार्टिकल का डेविएशन क्या है, स्मॉल रहता है, बिकॉज दैट टाइम अल्फा पार्टिकल इज फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है दोनों के बीच में वो कम रहेगा। फॉर स्मॉल बी, जब बी कम रहेगा, मतलब सपोज बी इतना ही है, यहाँ से यहाँ तक है, देन फॉर स्मॉल बी दिस अल्फा पार्टिकल्स विल सफर लार्ज डेविएशन। अभी मुझे बताओ, जब बी 0 रहेगा तो अल्फा पार्टिकल का एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना होगा? व्हेन बी विल बी 0, बी 0 का मतलब क्या है? 180। 180, मतलब ये पोजीशन है सेम। we are targeting the alpha particle at the center of the nucleus, तो न्यूक्लियस का सेंटर इसी डायरेक्शन में पास हो रही है, तो दोनों में क्या है, दोनों का डिस्टेंस 0 है, दोनों के बीच में जिस डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल आ रहा है और न्यूक्लियस का सेंटर। तो 0 है, बी 0 है उसका मतलब, और बी 0 है, इम्पैक्ट पैरामीटर 0 है, इसका मतलब ये जो सिंस हियर दैट अल्फा पार्टिकल इज टारगेटिंग और इंसिडेंटिंग exactly on the nucleus, it will scatter through 180 degree. Getting this? So ये इम्पैक्ट पैरामीटर का एक्सप्रेशन डिस्कस करते, b इक्वल टू जेड ई स्क्वेयर कॉट थीटा बाई 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 हाफ mv स्क्वेयर। So you can see here b is directly proportional to here cot theta by 2, थीटा के स्कैटरिंग एंगल है, b की वैल्यू किस पे डिपेंड है, स्कैटरिंग एंगल पे। So note down this expression, then question आंसर्स देखते हैं। Let me know after you finished this. Shall I move ahead now towards question answer? Yes, ma'am. पहले कुछ थियरी क्वेश्चन है, ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और जो डिस्कस किया भाई मॉडल्स, उसके बारे में कितना पता चला है वो देखने के लिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन, थॉमसन्स एटम मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन दैट सक्सेसफुली। सो मैंने जैसे डिस्कस किया स्टार्टिंग में ही, हर एक एटॉमिक मॉडल के कुछ ड्रॉबैक्स है ना, मेरिट्स और डिमेरिट्स थे। दे कुड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दैट मॉडल, वी कुड एक्सप्लेन सम फिनोमिना वेयर वी कुड नॉट एक्सप्लेन सम अदर फिनोमिना। सो थॉमसन्स मॉडल कौन सा फिनोमिना इसमें से एक्सप्लेन नहीं कर पाए? थर्मी आयोनिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, आयोनाइजेशन ऑफ पार्टिकल्स। सी। यस, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। क्योंकि थॉमसन्स मॉडल क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाए, कोई बता सकते हैं? अभी जस्ट हम लोगों ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में देखा कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग से हमें पता चलता है कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है ना, ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल, जो अल्फा पार्टिकल एग्जैक्टली न्यूक्लियस के सेंटर में इंसिडेंट हुए थे वो 180 डिग्री से डेविएट हुए। जो पॉजिटिव चार्ज से चार्ज के बहुत दूर से पास हुए थे वो अनडेविएट रहे थे। तो इससे हमें पता चला कि पॉजिटिव चार्ज के सेंटर में है न्यूक्लियस के एटम के, पॉजिटिव चार्ज इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ एन एटम। लेकिन थॉमसन मॉडल में क्या कंसीडर किया था, थॉमसन मॉडल एक प्लम पुडिंग मॉडल के जैसे ना, उसको प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। तो उसमें क्या था कि पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, मतलब पॉजिटिव चार्ज
ऐसा हर एक जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ है एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। तो ये जो स्ट्रक्चर है उसकी वजह से हम थॉमसन्स मॉडल कंसीडर करके अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग नहीं एक्सप्लेन कर सकते, क्योंकि थॉमसन मॉडल अगर हम लोगों ने कंसीडर किया कि पॉजिटिव चार्ज स्पीयर है, अगर एटम एक पॉजिटिव चार्ज स्पीयर जैसे होता तो अल्फा पार्टिकल, ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल क्या होते, डेविएट होते, अनडेविएट नहीं रहते। जैसे यहाँ पे इंसिडेंट हुआ अल्फा पार्टिकल, तो ये पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करता है। इफ इट इज इंसिडेंटिंग हियर देन आल्सो इट इज गेटिंग डेविएटेड। लेकिन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने क्या देखा था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स रिमेन अनडेविएटेड। So this is not the case about this is not the case about uh, this is not what we have observed in this alpha particle scattering experiment. Okay? Now second, charge on alpha particle equals to अल्फा पार्टिकल। अभी हम लोगों ने देखा अल्फा पार्टिकल मतलब क्या, क्विकली हीलियम 2+। हीलियम, तो न्यूक्लियस, सो कितना चार्ज रहते हैं उस पे, 2 इलेक्ट्रॉन। यस, सो ऑप्शन इज हियर, डी। क्या आएगा ऑप्शन में, डी। टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम रुदरफोर्ड यूज्ड, क्या यूज किया, अल्फा रेज। डी की बी, अल्फा रेज ना अभी देखा, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए अल्फा रेज यूज किए जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे। गैमा रेज क्यों नहीं यूज किए, क्योंकि गैमा रेज पे तो कोई चार्ज नहीं रहता, दे गैमा रेज आर नॉट पार्टिकल्स बट दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल यूज किए क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल एटम के पॉजिटिव चार्ज से क्या होते हैं, रिपेल होते हैं, और हमें पता चलता कि पॉजिटिव चार्ज एक्चुअल एटम में कहाँ कहाँ लोकेट है, एंड देयरफॉर रुदरफोर्ड यूज्ड अल्फा रेज मेनली। नेक्स्ट देखो, फोर्थ, इन द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन ए है मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास थ्रू फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स got deflected through small angles, most of the particles got deflected through angles greater than 90 degree, and almost all the particles were deflected back through 180 degree। कौन सा ऑब्जर्वेशन करेक्ट है, बी। why not first choose the correct one। अभी हमें मोस्ट करेक्ट ऑप्शन चूज करना है यहाँ पे, बी। बी। बी में क्या दिया है देखो, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स गॉट डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए थे क्या, see what we had seen in conclusion is most of the particles passed undeviated। okay? undeviate मतलब डिफ्लेक्ट नहीं हुए थे। okay? क्योंकि एटम में क्या है, बिकॉज एटम हैज लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इन इट, एटम में बहुत सारे एम्प्टी स्पेस है। देखो ना, अगर ये एटम गोल्ड एटम कंसिडर किया मैंने, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, okay? अल्फा पार्टिकल अगर यहाँ से इंसिडेंट हो रहे हैं, तो बहुत कम अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल तो न्यूक्लियस के बाजू से ही जा रहे हैं, तो न्यूक्लियस से के बाजू से जाने वाले जो अल्फा पार्टिकल्स है वो क्या रहने वाले हैं, अनडेविएट रहने वाले हैं। खाली वो अल्फा पार्टिकल्स, अगर बाद में तुम लोग रुदरफोर्ड मॉडल में स्टडी करोगे कि साइज ऑफ एटम और साइज ऑफ न्यूक्लियस के, एटम की साइज है 10⁻⁻10 मीटर और न्यूक्लियस की साइज है 10⁻⁻15 मीटर, मतलब ये छोटा जो मैंने दिखाया ना, ये इससे भी छोटा रहेगा एज कम्पेयर टू एटम।
तो सिर्फ जो इस पे को टकराने वाले हैं ना न्यूक्लियस के साथ, वही डिफ्लेक्ट होने वाले हैं, बाकी तो सारे ऐसे ही पास होने वाले हैं अनडेविएटेड। सो कौन सा ऑब्जर्वेशन करेक्ट है यहाँ पे? ए। ए इज करेक्ट हियर। ओके, बिकॉज याद रखो कि न्यूक्लियस size of nucleus is about 1 lakh times smaller than the size of atom. एटम के साइज से न्यूक्लियस की साइज क्या है? 1 लाख टाइम्स स्मॉलर है। मतलब एटम बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियस। अगर तुम लोगों ने एक बड़ा सा स्टेडियम कंसीडर किया और उसमें से छोटी सी फील्ड है, तो इतनी छोटे स्पेस मतलब अल्फा पार्टी ये न्यूक्लियस, और बाकी बड़ी स्पेस स्टेडियम की, पूरा बाकी का स्टेडियम मतलब एटम। तो सिर्फ वही अल्फा पार्टिकल डेविएट होने वाले जो न्यूक्लियस पे इंसिडेंट होने वाले या फिर उसके थोड़े से नजदीक से जाने वाले हैं, बाकी तो न्यूक्लियस के कांटेक्ट में नहीं आ रहे, सो दे विल नॉट एक्सपीरियंस मच फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड दे विल रिमेन अनडेविएटेड। ओके, सो ऑप्शन ए इज हियर मोर करेक्ट। बी भी करेक्ट है, लेकिन मोस्ट नहीं होना चाहिए था उधर, वर्ड सम रहता तो ठीक है। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गॉट डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स, देन दैट स्टेटमेंट विल बी करेक्ट, बट दे हैव यूज्ड वर्ड मोस्ट। 5 minutes more. Last few questions are there. तो कल ये दोबारा फिर से रिपीट नहीं करना पड़ेगा। चलिए ये बताओ, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? नहीं रहते। इंडिपेंडेंट ऑफ थिकनेस ऑफ द कॉइल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द कॉइल, directly proportional to the square of the thickness of the coil, and inversely proportional to the square of the thickness of the coil. Which one is correct? रिलेशन देखा था हम लोगों ने बिटवीन नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एंड थिकनेस ऑफ द कॉइल। क्या रिलेशन था दोनों में? फॉर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन व्हेन वी मेजर्ड scattered alpha particle in particular direction. B. B correct. Okay, n is directly proportional to t, thickness of the coil से directly proportional है। Okay. Question number 8. For the alpha particle scattering experiment, which of the following is not true for the distance of closest approach? Not true पूछा है। Okay. It specifies the nuclear dimension. पता चलता है nuclear dimension impact distance of closest approach से। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हमें ये बताता है कि अल्फा पार्टिकल कहाँ तक पहुंच सकते हैं न्यूक्लियस के। तो ऑब्वियसली उससे हमें न्यूक्लियस की साइज पता चलती है, न्यूक्लियस का डायमेंशन पता चलता है। सेकंड क्या बोले? एट दिस डिस्टेंस काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेटर रहती है। सी ऑप्शन देखते हैं। एट दिस डिस्टेंस एंटायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। और फोर्थ दिए इट इज प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। Which one is correct? Whichever you बी। B. हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है एटम के ऊपर का और अल्फा पार्टिकल सिर्फ यहाँ तक आ सकते हैं, तो ये है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सो इस डिस्टेंस पे क्या होता है? द एंटायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। बी में क्या दिया है? एट दिस डिस्टेंस काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी। अगर इस डिस्टेंस पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा रहती तो
विद द हेल्प ऑफ दैट काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल और आगे जाता है, बट अल्फा पार्टिकल और आगे नहीं जा सकता ना, इसीलिए तो उसको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का है, ये लिमिट है, यहाँ तक ही अल्फा पार्टिकल पहुंच सकता है। दिस इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस अप टू विच अल्फा पार्टिकल कैन अप्रोच, इसके आगे अल्फा पार्टिकल नहीं जा सकता। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी उसकी खत्म हो रही है, मतलब कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल एनर्जी में। ऑल काइनेटिक एनर्जी एट दिस डिस्टेंस गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज सी। समझ में आ रहा है क्या? सेकंड में बोला है ना, ग्रेटर बोला है, ग्रेटर है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी है तो वो मूव हो सकते हैं ना और आगे बढ़ सकते हैं, और वो स्टॉप नहीं होगा। स्टॉप हो रहा है मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में वही हो रहा है। ये मिनिमम डिस्टेंस है, ये लिमिट है जहां तक ये पार्टिकल अल्फा पार्टिकल क्या पहुंच सकते हैं। तो इस पार्टिकल में इस पॉइंट पे आके क्या हो रही है, उसकी एंटायर काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। एक लास्ट एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देन वी विल कंटिन्यू टुमारो। नाइन्थ देखो, हैव यू अंडरस्टूड दिस एट वन? Yes. Waiting for your response quickly. Okay. Next one देखो, the diagram shows the path of 4 alpha particles of the same energy being scattered by the nucleus of an atom simultaneously. Which of these are it's not physically possible? R or is? D. 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 Why? Why वो भी बताने का मुझे, क्यों D लग रहा है? इसका मतलब क्या है पता है, पता चल रहा है ना, ऐसे अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं और ये स्कैटर्ड हुए इस डायरेक्शन में, डिफ्लेक्ट हो गए। सेकेंड अल्फा पार्टिकल ऐसे है और बाद में डिफ्लेक्ट हो गया। okay? ये जो पॉइंट दिखा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉजिटिव। न्यूक्लियस प्रेजेंट कर रहे हैं ना, न्यूक्लियस और पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट कर रहा है एटम का। सो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे, रिपेल हो रहे। ये थर्ड पार्टिकल वो न्यूक्लियस के डायरेक्शन में आ रहा था तो वो ज्यादा रिपेल हो गया, ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गया। ये फोर्थ पार्टिकल ऐसे दिखा है, तो ऐसे दिखा है उसका मतलब क्या है, ये बीच में है मेरा पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस है, और ये अल्फा पार्टिकल है। पॉजिटिव चार्ज एटम का पॉजिटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियस, और अल्फा पार्टिकल दोनों में क्या होता है हमेशा, कौन सा फोर्स रहता है? फोर्स ऑफ रिपल्शन। फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो ये जो फोर्थ की जो ऐसी लाइन दिखाई थी वो क्या रिप्रेजेंट करिए कि ये जो फोर्थ पार्टिकल है ये तो न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है, ऐसे दिखा रहा है, मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखा रहा है वो, क्योंकि वो उसकी तरफ न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हुआ दिख रहा है, बढ़ता हुआ दिख रहा है। okay, which is not possible because since both they have nucleus as well as alpha particle have positive charge and there is a force of repulsion between these two positive charges, ये फोर्थ केस जो डिस्कस की वो नहीं हो सकती, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो सकता, और इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पे? D. डी। डी होगा। Because alpha particles cannot be attracted by the nucleus, ये रिपेल होना चाहिए, वो इस डायरेक्शन में कुछ डिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाना चाहिए था। It is showing attraction. Okay, so let us stop here for the day since you have another lecture now after this. I'm stopping here. Okay, just go through this theory. Okay, theoretical part of Giger-Marsden experiment and Thomson's model. Then tomorrow we continue with Rutherford's model of an atom, and we will see some derivations, Bohr's model. Anyone have any doubt in today's topic? No, ma'am. Okay, then about test I will discuss tomorrow.
Okay, let us stop here for the day. Pranita ma'am. Yes, ma'am. Hello. Yes, we can stop here. Yes, मैम. किसी को कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना है मैम से? No, ma'am. ओके. सो आज का क्लास हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू ऑल ऑफ यू. जय भीम. और हमारा क्लास नेक्स्ट 7 बजे है, सो प्लीज बी ऑन टाइम. थैंक यू.